The electorate in 7 seats of Delhi ranges from those living in slums to those living in colonies of the uber-rich. From those in central Delhi, close to the power capitals of Parliament and Raisina Hill, to those in localities on the outskirts bordering Haryana and Uttar Pradesh. From community-specific ghettos to mixed neighborhoods. Over the next half hour, we'll take you through all these 7 seats, trying to understand what are the concerns of the voters living in these areas and who are they likely to choose in the elections to the Lok Sabha going to be held soon. Come, do join us. Patel Nagar Assembly segment under the New Delhi Parliamentary Constituency had gone to the Aam Aadmi Party in the Assembly elections of December 2013. The nearest competitor was Bharatiya Janata Party. Supporters of sitting MP Ajay Maken of the Congress Party feel that he still enjoys a lot of support in the constituency. क्योंकि कांग्रेस वाले कुछ सुनते हैं, कुछ करवाते हैं और उससे ज़्यादा तो कोई सुनता नहीं है। हमारे ये लोकल में पटेल नगर रेलवे स्टेशन कहलाता है, वो उसकी जर्जर हालत थी। जो प्राइम चीज़ है मैं बता रहा हूँ, जो कि हाईलाइट्स है हमारे मेजर। एक तो अंडरपास अभी हमारे रिसेंटली लास्ट मंथ जो हमारे इनोग्रेट किया है, रेलवे मिनिस्टर आए थे, हमारे स्टेट रेलवे मिनिस्टर आए थे। 129 करोड़ का जो उन्होंने किया है, और ऐसा नहीं है, उनके एफर्ट थे, उनके साथ वोट बैंक है। एक ये चीज सबसे बड़ी बात है, अंडरपास हुआ, उससे क्या होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी हमारी, जैसे आपको पता है। जिनका जुकाम नहीं भी था ना, जो आम आदमी की तरफ भी जा रहे थे, कहीं पे भी जा रहे थे, वो भी सब अजय माकन जी को मतलब कर रहे हैं कि अजय माकन जी को ही दोबारा आना चाहिए। कुछ नहीं होगा तो हम करेंगे। तुम उस लायक को, तुमने नेशनल किया है, कहीं ना कहीं या फिर और भी खेलने का मौका मिलेगा। Makan's campaign appears aimed at capitalizing on a clean image. On a visit to Baljit Nagar, an unauthorized colony in his constituency, he carries out a silent tour, stopping only for those who wish to shake hands with him or garland him. Slogan chanting supporters are in tow. Since I do not have any charge of corruption against me, I think that is something which is going to help me. Okay. So what is your electorate telling you? What are your constituents telling you when you are speaking to them? I tell my constituents, not them. It is this time in the elections I have to tell my constituents. After once I get elected, the constituents tell me. It is the other way around. In Patel Nagar market, barely 100 meters from Makan's campaign office, voters exhibit support for BJP as well as AAP. Not in the name of their candidates Meenakshi Lekhi and Ashish Khaitan, but in the name of Narendra Modi and Arvind Kejriwal. ज़्यादा तो बीजेपी की है। ज़्यादा बीजेपी की है, तो जो यहाँ से कैंडिडेट हैं मीनाक्षी लेखी, उनकी वजह से है या मोदी की वजह से? नहीं, मोदी की वजह से। मीनाक्षी लेखी कोई जानता ही नहीं। केजरीवाल को मिलेंगे। केजरीवाल को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे जी। तो कई लोग नाराज हैं इस बात से कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मौका इस्तीफा दे दिया था तो इन लोगों की वजह से दिया था ना। अब वो आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं ना, पीछे बढ़ने के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं। भाजपा को देंगे हम तो, मोदी जी को। मोदी जी के नाम पे? मोदी जी का नाम, मोदी का नाम ज़्यादा आता है। मोदी का नाम ज़्यादा आता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का नहीं? आम आदमी का भी है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है। कांग्रेस से नाराजगी है, कांग्रेस का ज़्यादा नाम नहीं आता। अब जो नज़र आता है वैसे ही पता लगता है। कांग्रेस का ज़्यादा नाम नहीं आता? नाम नहीं आता, मतलब प्रचार नहीं है ना उनका। Purani Delhi, the walled city of Delhi, under Chandni Chowk Parliamentary Constituency, houses the largest mosque in India, the Jama Masjid. Around the masjid, we find supporters of Congress as well as Aam Aadmi Party. केजरीवाल का। क्यों? ईमानदार आदमी है। हाँ। ईमानदार आदमी है। हाँ। और बताइए आप। बस ईमानदारी पर ही? ईमानदार है, काम करने वाला है। कांग्रेस पार्टी चाहती है 2 दिन में काम करके दिखा दे, उसने 10 साल में तो कुछ किया नहीं। 10 साल 15 साल से राज कर रही है, उसने आज तक क्या किया है? हम तो कांग्रेस को देते हैं वोट। हाँ। तो इस बार भी उन्हीं को देना है? हाँ इंशाल्लाह। कपिल सिब्बल को? हाँ कपिल सिब्बल को। भाई बहुत बड़े आदमी कपिल सिब्बल, शुरू से हम देख रहे हैं काम में आगे रहते हैं वो, जो बात है। हाँ हर चीज़ में
यहाँ काम हुए? हाँ यहाँ भी काफ़ी काम करे हद तक। सड़कें तो देखो अच्छी बन जाती है, फिर दोबारा यहाँ रोड वगैरह ऐसे फिर दोबारा उसी लेवल पर आ जाते हैं। सड़कें बेचारे बनती रहती है, मगर यहाँ का ट्रैफिक इतना होता है, फिर दोबारा उसी लेवल पर आ जाती है। वो तो अपनी तरह पूरी कोशिश करते हैं वो लोग। Deep inside the area in Balli Maran, a young resident shows us the office of the local municipal ward councillor who has recently joined the Aam Aadmi Party. He encourages me to go in the street and assess the situation myself. We are eager to explore the impact of the appeal made by Jama Masjid Shahi Imam to Muslims to support the Congress. Emotions here are charged. आज भी 15 दिन से सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, कुल्ली तक नहीं कर सकते पानी की। अजी मतलब जो सप्लाई का आता है अभी आओ मैं आपको गिलास दूं, पानी के अंदर भर करके कीचड़ का पानी है, कीच का पानी, इतना सड़ा हुआ पानी है कि बयान से बाहर है। आपके यहाँ साफ होगा, मेरे यहाँ पानी 15 दिन से सड़ा हुआ आ रही है, और मेरे यहाँ नहीं पूरे मोहल्ले में सड़ा हुआ आ रही है। कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक, कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। कपिल सिब्बल साहब की तो सूरत ही नहीं देखी 20 साल में, 15 साल में। सिर्फ जब 15-10 इलेक्शन हुआ था, जब यहाँ उनकी स्पीच सुनी थी खड़े होकर के हमने, जब उन्होंने कहा था कि हाँ जी हमको वोट दीजिए, हाँ झाड़ू से ही होगा जो भी कुछ होगा। Supporters of two-time MP Kapil Sibal offer an explanation. हर आदमी को ये चाहिए कि मैंने कपिल सिब्बल को वोट दिया था, वो मेरी जिम्मे बैठ जाके। ऐसा नहीं हो सकता। मिनिस्ट्रियाँ होती हैं उसके बाद काम होता है, दिल्ली को बनाना होता है, इतनी एजुकेशन के लिए काम करा है। हर आदमी को नहीं पता कि घर में बैठ के सो रहा है, टीवी देख लिया, झाड़ू नजर आई, बाहर आके झाड़ू कर रहा है। Buradi is located close to Delhi's border with Uttar Pradesh in North-East Parliamentary Constituency. Home to a largely migrant population hailing from Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand and a few other states, large parts of this area suffer from the absence of basic amenities. पहले खाली सड़क बना है बहुत दिन से, लेकिन ये पानी इतना का सब दिन लग रहा है। बिजली तो किसी टाइम आता है, किसी टाइम चला जाता है, मतलब कोई टाइम नहीं है। शाम को तो अधिक जाता है 2 घंटा के लिए। अच्छा, मतलब फिर भी तो 24 घंटे में कितने घंटे रहती होगी? अब समझ लो 10 घंटे। अब उतना जी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो ये देखते हैं शाम को 2 घंटा अंधेरे में मोमबत्ती जलाते हैं। 3 घंटे लाइट आती है, फिर 2 घंटे फिर भाग जाती है, फिर 2-3 घंटे को आया, फिर 2-3 घंटे फिर भाग गया। ऐसे करता है। बड़ा अस्पताल कुछ नहीं है ना। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल 2 उधर है। तो किसी के साथ अगर कोई बड़ी मेडिकल आपदा आ गई तो फिर कहाँ जाते हैं? फिर क्या करें, वहाँ इंदौरा जाना पड़ता है। Having arrived here long ago, they are all voters of this area. Among those we spoke to, anti-incumbency was clearly visible. कांग्रेस को भी देख लिया, आम आदमी को भी देख लिया, अब क्या देंगे हम बीजेपी को, मोदी। आपसे तो हाथ ही जोड़ लिया है। अच्छा, बाकी मोदी जी को ही लाना इस बार। मोदी को आजमा के देखना है। वो आपके बाहर तो मोती को देंगे, सब मोती वाले हैं सब। अच्छा, सब मोती वाले सब, तुम जाओ मत जाओ सब मोती वाले है यहाँ। अच्छा, बस। AAP had clinched the Buradi assembly segment in December. The party stock here is not very high now. Some support, however, does exist. हम तो आम आदमी पार्टी को देंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को देंगे तो ऊपर जाके बहुमत कांग्रेस का आ गया तो फिर महंगाई, ये डर है। और बीजेपी की बात यह है, मनोज तिवारी जी जो यहाँ से खड़े हुए हैं वो यहाँ रहेंगे ही नहीं। आम आदमी पार्टी। In the neighbouring East Delhi constituency, we visit Batla House, also an unauthorized colony. 30 kilometers away from Buradi, this locality too has almost identical problems.
जो ना बेसिक नेसेसिटीज होती हैं लोगों की, वो अभी तक पूरी नहीं है। मान लीजिए बहुत सी जगह पानी नहीं है, हाँ सीवर लाइन नहीं है। अब हम पानी कहाँ तलक खरीदे, कहाँ तलक बच्चों से मंगावे, बताओ। हर तरह से परेशान है, बिजली से, पानी से, सीवरों से, हर चीज से परेशान है। जब आएगा ना तो बिल का भरेंगे, जब आएगा तो बिल का जब पानी ना आएगा कुछ ना आएगा बिल का भरेंगे। अब ये सीवर के भी बिल जाएंगे, ये सीवर के भी भर जाएंगे, सीवर के भी जाएंगे। It is of little difference to them that the forthcoming elections are for the parliament and not the state assembly or municipal corporation. Portrayal in popular media has led us to believe that the burning issue here would be security for local Muslim youth against excesses by the police and right-wing politicians. We try to verify. इन चीज़ें यहाँ पे सिक्योरिटी, जब किसी की सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे शाहीन बाग से लड़के उठा लिए यहाँ पे, जबकि सांसद भी कांग्रेस का है। Congress has a traditional vote bank here. Sitting MP Sandeep Dixit, local MLA as well as municipal councillor, all are congressmen. हम तो कांग्रेस ही हैं पक्के भाई, और बिल्कुल कांग्रेस को देंगे अपना वोट, खराब हो जाए या कुछ भी हो, हम तो कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को देते आए हैं वोट अपना। क्यों? हम कांग्रेस शुरू से, हमारे बाप दादा कांग्रेस को देते आए हैं, तो हम भी कांग्रेस को। पंजे को देंगे भैया। क्यों पंजे वाले करवा रहे हैं हमारा काम? कहाँ करा रहे हैं काम? और क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ना, जब चुनाव आ गए, चुनाव से पहले गटर डले, चुनाव से पहले पानी की लाइन डली है। अच्छा, हाथ से कमाते हर हाथ को देंगे, आई समझ, हाथ को ये ना हो तो हमारे मुंह में निवाला न जाए। But we find Aam Aadmi Party gaining strength here. इस बार यहाँ क्या विचार है, एमपी किसको बनाना है? झाड़ू वालों को। झाड़ू वालों को? क्यों? वो मतलब सही काम करेगा इंशाल्लाह। हाँ। तो लोग जो इतने कह रहे हैं कि वो उनको मौका मिला था फिर इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा तो उसके टांग खींचते रहे और उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया। तो किससे उम्मीद है? झाड़ू वाला है। जो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो क्या आम आदमी पार्टी से ये उम्मीद है कि वो सिक्योरिटी के बारे में कुछ कर पाएगी यहाँ? देखिए जैसे उनका कल जो आया है वो मैनिफेस्टो आया है, उसमें तो लिखा है उन्होंने, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी उसके अलावा उठा रही है। जैसे? तो जैसे जो है करप्शन है, या जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की, बिजली पानी, और यही तो होते हैं मेन चीज़ें। जब यही नहीं मिलती तो क्या होता है। In Govindpuri, under South Delhi Parliamentary Constituency, AAP has organized a roadshow led by Arvind Kejriwal. Arvind responds to allegations of running away from responsibility by quitting as Chief Minister. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी गर्मजोशी से आप लोगों ने स्वागत किया है। विधानसभा के अंदर इन्होंने माइक तोड़ दिए, विधानसभा के अंदर इन्होंने फाइलें फाड़ दी, एक भी कानून पास नहीं होने दिया इन्होंने। तो दोस्तों मेरे पास दो विकल्प थे, एक ये कि बिना काम किए मुख्यमंत्री बना रहता, ये काम तो करने नहीं दे रहे थे, काम ना करता और मुख्यमंत्री बना रहता। मेरी आत्मा ने कहा कि अरविंद इस्तीफा दे दो, बाहर जाओ और जनता को दो, भैया 28 सीट से काम नहीं चलेगा, 50 सीट देनी पड़ेगी, आगे तब काम करेंगे। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले चारों तरफ फैला रहे हैं, केजरीवाल भाग गया, केजरीवाल भाग गया, केजरीवाल भाग गया। सुना आप लोगों ने? अरे कहाँ भाग गया? मैं नहीं खड़ा हूँ, यही जीऊंगा, यही मरूंगा। After the roadshow is over, local residents are eager to tell us that they were all die-hard Congress supporters till now. सर अरविंद केजरीवाल जी को सर सबके लिए वो भला कर रहे हैं, सब गरीब आदमी को भला कर रहे हैं। बिजली उन्होंने कम करी, कुछ भी सब्सिडी चाहे हमारे पैसा हम ही दे रहे हैं, पर सब्सिडी कम होने, बिजली कम हुई, पानी बिल कम हुए। सर एंट्रियाँ बंद हुई, हमारी गाड़ियाँ चलती है स्कूल की, उसमें एंट्रियाँ बंद हुई। लाइक आदमी तो यही है केजरीवाल, अच्छा, सबसे अच्छा ईमानदार आदमी। हम तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे, जिंदाबाद। अच्छा, कांग्रेस से क्या मोह भंग हो गया है? मोह भंग बिल्कुल, हम तो जी पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे फुल जी जान से, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारे मैं यहाँ पे कैंप में रहता हूँ, कोई साफ नहीं, सफाई नहीं, पुलिस वालों का करप्शन, गुंडागर्दी, ये सब चल रहा है। तो इसीलिए हम तो साफ सुथरे आदमी को वोट देंगे। और अरविंद केजरीवाल को तो हम पहले से उस तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो जब एनजीओ वगैरह में काम करते थे तो तब से बिल्कुल साफ सुथरे नेचर के हैं, इसका हम प्रमाण दे सकते हैं जी। A few blocks away, some support for BJP emerges, but AAP has resonance here too, especially among the not so well-to-do. हम तो सर आम पार्टी को देंगे। ऐसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाँ हाँ नहीं जी, हाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों है। भ्रष्टाचार के खिलाफ? हाँ नहीं बीजेपी कांग्रेस में भ्रष्टाचार है या वो दोनों? नहीं भ्रष्टाचार दोनों में, बीजेपी कांग्रेस में। हाँ जी। आम आदमी पार्टी में नहीं, आम आदमी साफ है, बिल्कुल साफ सुथरा है। मोदी की लहर है जी। अच्छा, मोदी की लहर। तो यहाँ से मतलब बीजेपी का निकलेगा जी। तो रमेश बिदूड़ी के नाम पे कुछ अट्रैक्शन नहीं है, सारा मोदी जी के नाम पे? नहीं, रमेश बिदूड़ी जी ने पिछले तुगलकाबाद विधानसभा में जो भी विकास करा है, उसी का कारण है कि 3 बार विधानसभा में वो जीत चुके हैं। ठीक है, तो उसका तो असर पड़ेगा। और मोदी जी की तो लहर है। इस देश को चलाने की जो शक्ति है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। ये दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। देश को चलाने का जो जज्बा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। मैं नरेंद्र मोदी को तहे दिल से चाहता हूँ। ये कैसे लगा आपको? उन्होंने काफ़ी गुजरात में भी काफ़ी काम किया है। गुजरात गए हैं? मैंने भी देखो जी, मेरे परिचित गए थे, उन्होंने मुझे बताया, तो उनकी बताई हुई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जी। किसे देना है? अरविंद जी को। क्यों? हमें पसंद है वो, और हमारा बिजली का बिल वगैरह सब कम करवाया उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। और सरकार से इस्तीफा दे दिया, इस बात का दुख नहीं है? जैसे भ्रष्टपना चल रहा था, उन्होंने उस वजह से इस्तीफा दिया, इसलिए खुश है हम। खुश है? हाँ जी। अच्छा। और अब वो दोबारा आएंगे तो उससे ज़्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिलेगी जितनी अब मिलेगी। In Anand Vihar colony of Uttam Nagar under West Delhi parliamentary constituency, most shops are yet to open for the day. Some residents are out in the streets waiting for the arrival of the BJP candidate from here. यहाँ के जो आप MP हैं हमारे बावल मिश्रा जी, उनके पास आप अभी एप्लीकेशन लेकर चले जाओ, इंग्लिश में लिखकर कि मेरे बच्चे को कहीं एडमिशन दिलानी है, तो कहते हैं हिंदी में लिख के लाओ। जिन नेताओं को यही नहीं पता हिंदी इंग्लिश में पढ़ के, हिंदी में पढ़ के ये राज चला रहे हैं, तो ये राज क्या चलाएंगे? आप भी भारतीय जनता पार्टी को? हाँ जी भाई साहब, भारतीय। क्यों? क्योंकि बहुत बढ़िया काम करती है वो, भ्रष्टाचार नहीं करती, बहुत कम भ्रष्टाचार है उसमें। अच्छा। हाँ भ्रष्टाचार है, लेकिन है, बाकी बहुत कम है। मुक्त नहीं है पार्टी? मुक्त नहीं है, बाकी बहुत कम है। कांग्रेस जैसे 95% है, बीजेपी 5%। An elderly BJP supporter also echoes these sentiments. When he tells us he has been a party supporter since 1979, we ask him, does he see any difference between then and now? बीजेपी तो वही है, समझे, मगर इसमें जरा क्या क्या, मैं पहले जरा कर्मठ ज़्यादा थे लोग बाग, अब जरा कम है। समझे, अब आदमी बिजी इतना हो गया है अपने बिजनेस से कि वो अपने देख रेख में लगा रहता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता पार्टियों की तरफ। पार्टी में भी बिजनेसमैन ज़्यादा आ गए हैं जिन्हें अपने हाँ, पार्टी में बिजनेस है ही। कोई भी विधायक या MP है, बैकग्राउंड उनको देखोगे तो बिजनेसमैन मिलेंगे सब। BJP candidate Pravesh Singh Sahib is the sitting MLA from Mehrauli and is the son of former Delhi Chief Minister Sahib Singh Verma. He tells us BJP will get the people's mandate from here for development of this constituency as well as for ushering in a government at the centre with Narendra Modi as Prime Minister. मोदी जी का फैक्टर तो है ही, वो केवल मेरी क्षेत्र में नहीं पूरे देश में फैक्टर है। और उसके बाद में मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए कई अच्छी योजनाएं लेके आए, तो उनका नाम का फ़ायदा, काम का फ़ायदा ना केवल मुझे मिलेगा, दिल्ली की 7 सीटों पर उनका फ़ायदा मिलेगा। और हम युवा हैं तो युवा हमसे जुड़ रहा है, हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़ा लिखा वर्ग हमसे जुड़ रहा है, और हम सभी ये सोचते हैं कि देश में अच्छी सरकार बने और उसी के लिए काम कर रहे हैं। रोड शो के माध्यम से आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सभी क्षेत्रवासियों को निवेदन कि अपने घरों से। In Vikaspuri, an urban neighborhood nearby, we get a more varied response. अब मेरा झुकाव थोड़ा टोपी वाले की तरफ फिर गया थोड़ा। अच्छा, क्यों? भाई यूँ ही का कुछ मतलब अभी ये नया आदमी है, कुछ करने की हिम्मत रखता है शायद। अच्छा।
अभी छवि अच्छी है। हाँ, इसकी अभी छवि अच्छी है, अभी घोटाले में नहीं फंसा ये। हाँ। हाँ। घोटाले में नहीं फंसा, किसी मारकाट में नहीं फंसा, जलाने फटाने में नहीं फंसा, ये अभी तक नया सा है, क्या शायद अच्छा काम कर जाए। और कई लोग जो आलोचना करते हैं कि इनको तो एक मौका मिला भी, सरकार बनाई भी, लेकिन फिर इस्तीफा दे दिया, वो मौका गवा दिया। वो तुमने सुना है महाभारत में जी अभिमन्यु को? जी। उसको 7 आदमियों ने मार करके हम मार दिया था घेर करके, क्योंकि ये यहाँ हमें अच्छी तरह से, और ये सबको मार देगा अकेला ही। मैं गुजरात घूम के आया था एक बार। घूम कर आए थे। हाँ। जी, क्या देखा? बहुत फर्क है जी। रात के 1:30 बजे भी लड़की स्कूटी चला के जा रही थी। अच्छा। ये दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा है। बहुत सुरक्षा है। जी। सड़कें देखी वहाँ की। अच्छा। बिजली नहीं जाती वहाँ। अच्छा। मैं गर्मियों में गया था। जी जी जी। कांग्रेस पार्टी ऐसा है जी, महंगाई कोई भी महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई के साथ इनकम भी बढ़ी है। पहले लोग जब सस्ता सामान था तो खा नहीं पाते थे, अब महंगे सामान को खा रहे हैं। 100 रुपये किलो फ्रूट खा रहे हैं, 70 रुपये किलो फ्रूट नहीं खा सकते थे, तो इसलिए महंगाई नहीं है, इनकम भी बढ़ी है, लोगों को रोज़गार भी मिला है, डेवलप भी हुआ है, कंट्री में बहुत डेवलप हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार जो है वो थोड़ा सा मैं 50-50 हूँ, खानदानी कांग्रेसी हूँ। अच्छा। लेकिन इस बार क्योंकि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। अच्छा। हद से ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसके लिए मैं पर्टिकुलरली 50-50 हूँ कि इस बार दूँ तो किसको दूँ। मोदी से उम्मीद इसलिए, गुजरात का बेस्ट मॉडल है मोदी से ऊपर कोई है ही नहीं, और मोदी से बढ़िया हमें नेता कोई लग भी नहीं रहा इस टाइम। गुजरात गए आप कभी? गुजरात गया नहीं हूँ, बट सुना है मैंने, बहुत सुना है, गया नहीं आज तक। अच्छा है गुजरात, काफ़ी है, रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इस वजह से। The slums of Mangolpuri in the northwest Delhi parliamentary constituency are a graveyard for all claims of development. Here, garbage is the source of livelihood, and struggle to find a place to defecate a part and parcel of daily life. लेटरिन करने जाते हैं जंगलों में हम, तो रास्ता नहीं है तो फिर लेटरिन करने कहाँ जाएं? तो वहाँ पर जाएंगे, झाड़ी में छिपेरेंगे, तो वहाँ पर लत्ता फाड़ देंगे, बेइज्जती कर देते हैं। ये है। और पटरी पे नहीं, जंगलों में जाते हैं, कीकड़ खड़ी है वहाँ पे, वहाँ में जामे लेटरिन करने। 2-3 लड़की पकड़ ली, जनानी गई वो पकड़ ली, वहाँ में गुंडों ने, जगह नहीं है लेटरिन के काज। आते हैं, ये कहते हैं हम हमारे को वोट दो, हम नाली बनाएंगे, खरंजे बनाएंगे, आपके बच्चे को सुविधा करेंगे, जुग्गिया पक्की कराएंगे, कोई सुनाई नहीं करता। उसके बाद जब हाथ जोड़ते पैर छूते उसके बाद कोई नहीं आता। अपनी जब उनको अपना घर बसाना होता तब आ जाते हैं, उसके बाद तो सब भूल जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। किसी की विधवाओं की वो पेंसिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे कैसे जाएं जब यहाँ ही कुछ नहीं है, तो कैसे जाएं बताओ? आगे जाते हैं, उनको चाहिए 5-6 हज़ार रुपए, कहाँ से देंगे? It is not hard to understand the significance of a caste certificate in the only parliamentary constituency in the capital reserved for candidates from the scheduled castes. But for several slum dwellers here, all that they have are voter IDs. पहचान पत्र है, लेकिन हमको कोई जरूरी काम करना होता है, वोट देते हैं। क्या नाम है उनके, जब जाति प्रमाण पत्र नहीं आएंगे तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे आगे जाके? क्यों नहीं बने जाति प्रमाण पत्र? उनके लिए पैसे मांगते हैं सर। अब उनके लिए 3,000 रुपए कहाँ से लाए? एक बच्चे पे 3,000 रुपए मांगते हैं, वो कैसे देंगे? 4 महीने हो गए जाति प्रमाण पत्र को मेरे को। आप गए थे? हाँ गए थे। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा? तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मैं सरकारी दफ्तर में गई हूँ बनवाने के लिए, तो उन्होंने कहा मेरे से कि आपका क्यों नहीं बना है? मैंने कि भैया हमारे बने थे, हमारे ससुर के, उनके हमारे में आग में जल गए आएंगे, हमारे इसलिए बनवाने में जरूरी आएंगे। तो कह रहा आपने कागज क्यों नहीं बचाए, डॉक्यूमेंट्स अपने क्यों नहीं बचाए? मैंने कि हम पे 4 छोटे छोटे बच्चे आएंगे, मैंने कि बच्चे बचाने मुश्किल हो गए। तो ये कह रहा मेरे से आग में झोंक देते बच्चों को, पहले कागज बचाते आप। Rakhi Birlan, AAP's candidate from here against sitting MP Krishna Tirath, had won this assembly segment last December by over 10,000 votes. Against that background, the hesitation apparent among residents in expressing support for anybody is surprising. कोई नहीं करता सुनाई, कोई नहीं करता, सब ऐसे ही करते हैं, कोई कुछ नहीं करता, ऐसे ही होती है उसमें। बस इलेक्शन आ जाए, वोट दे दो, अपने अपने घर में बैठ जाते हैं लेके, सब समेट के, और बाकी रह जाए। Signing off from the Mangolpuri slums of Northwest Delhi constituency of Delhi, I feel compelled to tell you
that I hesitated in asking these people the question that who should be the Prime Minister of this country. When in everyday life you're faced with problems like lack of toilets, lack of proper sanitation in your area, lack of drainage, lack of pakka houses to live in, lack of even basic documentation to ensure that you can avail government services that are targeted at you. Questions like who will become the Prime Minister, what will be the economic policy of this country, what should the parliament look like, these sort of questions somehow I feel recede into the background. How does then one ask these questions to voters of these areas? Signing off from New Delhi for the Janadesh series, this is Charu Karthike. Hope you like the program. Namaskar.